1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, मार्क 16 चैप्टर 1 वर्स से 20 वर्स, ड्यूटरनॉमी 1 चैप्टर 2 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 1 वचन से 20 वचन, व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 2 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। मार्क 16 चैप्टर 1 वर्स से 20 वर्स तक। रिबांदिका bahashara kasira larbahu kosiandura redin ekam bahuta larbaha akasi kam bahushara kasira larbahu kosiandura red ehel larbaha akasi kam bahushara kasira larbahu kosse zogo borrokotan ekam bahuta larbaha kasianduro det ul laraha adetkim bekabahati namagaha siandukam barahasa Redene mekati larbaha adinkin bekata larbaha azaskin bekashara kasira larbo pokosse bet al larbaha akatkin bekatin larbaha baraha let ul laraha aditkin beraha larbaha azaskin behil larbaha let ul laraha adankin bekabaha sisi larbaha antarah larbaha let ul laraha aditkin bekabah rakhatin larbaha barahusa zere begati gane mirikal larbaha aditkin berah larbaha adatkin berah larbaha radetkin berah larbaha akatkin berah larbaha azaskin berah larbaha Radatkin berahal larbaha, Hadetkin berahal larbaha, Lahadkin berahal larbaha, Akatkin berahal larbaha, Bahatkin berahal larbaha, Hazeskin berahal larbaha, Lahadkin berahal larbaha, Habatkin berahal larbaha, Lahad uhul laraha, Azeskin berahal larbaha, Akatkin berahal larbaha, Radetkin berahal larbaha, Akatkin berahal larbaha, Baptin ekaboro, Barab babahasi borokutan ikam uhushkar hasin larbahasa। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं कि जो वचन आप हमको सिखाते हैं खुदा, वो सारे वचनों के ऊपर यीशु मसीह आपका अनुग्रह आए। और खुदा परमेश्वर, आप हमारे जीवन में जो रास्ते देना चाहते हैं, जो वचन से पिता परमेश्वर हमको मोड़ना चाहते, मेल्ट करना चाहते, मोल्ड करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से हमको आप आकार देना चाहते हैं परमेश्वर पिता, वो सब कुछ आप कर पाए, ऐसी अधीन की इस वचन के लिए हम देते हैं खुदा। हमारा बाइबल रीडिंग पिता परमेश्वर हमारी शक्ति बढ़ाने का कारण बनाने के लिए मांगते हैं। हमारा बाइबल रीडिंग पिता आपके राज्य के भेद जानने के लिए और हमारे सारी बातों में पिता आपके जो आप चाहते हो उस तरह के दर्शन देखने वाली दृष्टि प्राप्त करने के लिए मांगते हैं। हमारी आत्मिक आंखें खोल खुदा, हमारे मन को खोल, हमारी सोचों को खोल खुदा परमेश्वर, ताकि हम तुझे मान सके और चल सके। नासरी यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह करने की विनती करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। Mark 16 chapter 1 verse to 20 verse of the resurrection and ascension of Christ. And when the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary the mother of James and Salome had bought sweet spices that they might come and anoint him. And very early in the morning, the first day of the week, they came unto the sepulchre at the rising of the sun. And they said among themselves, Who shall roll us away the stone from the door of the sepulchre? And when they looked, they saw that the stone was rolled away, for it was very great. And entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a long white garment, and they were affrighted. And he saith unto them, Be not affrighted, ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified. He is risen, he is not here. Behold, the place where they laid him. But go your way, tell his disciples and Peter that he goeth before you into Galilee. There shall ye see him, as he said unto you. And they went quickly and fled from the sepulchre, for they trembled and were amazed. Neither said they anything to any man, for they were afraid. Now when Jesus was risen early, the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast 7 devils. And she went and told them that had been with him, as they mourned and wept. And they, when they had heard that he was alive and had been seen of her, believed not. After that he appeared in another form unto 2 of them,
as they walked and went into the country. And they went and told it unto the residue. Neither believed they them. Afterward he appeared unto the 11 as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen. And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. And he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. So then, after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them, and confirming the word with signs following. Amen. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 1 वचन से 20 वचन। यीशु का पुनरुत्थान। पहले वचन से, जब सप्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुम से पहले गलील को जाएगा। जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वही उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कंपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी। हालेलुया। ये एक एरिया ऑफ लाइफ है, इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, क्योंकि कंपकपी, ठीक है, थरथराहट और घबराहट, ओके, ये कुछ इमोशंस है जो लोग इविल पावर्स के कारण जब आता है उनके ऊपर तो हड़बड़ी मचाते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, यहाँ पर कोई इविल पावर बात नहीं कर रहा था उनके साथ, है ना। यहाँ पे कौन बात कर रहा था? यहाँ पे परमेश्वर का स्वर्गदूत बात कर रहा था, बराबर है। अब वो बात कर रहा है, फिर भी उनके इमोशंस पे देखो क्या आ रहा है, कंपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, हमारे बॉडी का जो सेंसस है स्पिरिट रियाम के कारण डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, चाहे वो परमेश्वर की ओर का हो या चाहे वो शैतान की ओर का हो, हमारे बॉडी के जो सेंसस होता है, सेंसरी नर्व्स रहते हैं, सेंसरी डॉट्स रहते हैं, सेंसरी स्पॉट्स रहते हैं, सेंसरी थिंग्स रहते हैं जो भाप सकते हैं। ओके, जैसा ठंडा गरम जो भाप सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ हमारे बॉडी के अंदर हमको परमेश्वर ने हमारी सहायता के लिए रखे हैं। ओके, अब इसका काम है, जब इसके एबिलिटी से अलग कुछ आएगा, यानी इसको अगर एक गर्म चीज़ है पकड़ने के लिए आपका जितना एबिलिटी है आप उतना ही समय उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा गर्म हो जाएगा फिर आप उसे छोड़ देंगे, क्योंकि आपके सेंसरी जो डॉट्स है, सेंसरी के जो आपके एबिलिटी है उसकी ताकत उतनी ही है। ओके, तब आप उसको ताकत से बाहर जाएगा तो आप उसे छोड़ देते हैं। समझ में आया? ठंडा उतना ही आप सहन करते हो जितना आपको हो सकता है, फिर बाद में आपको स्वेटर पहनना पड़ता है क्योंकि आपको ठंडा वो आगे बढ़ाना नहीं है, है ना। तो आपका सेंसरी आपका लिमिट बताता है कि आप कितना हद तक आप किसको झेल सकते हैं, कोई भी बात को। ओके, तो आपका एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी रहेगा आपका सेंसरी डॉट्स आपको बताएगा वो।
ओके, आपका सेंसरी डॉट्स आपके फ़ायदे के लिए है। तो आपका सेंसरी डॉट्स अगर कंपकपी में हड़बड़ी करने लगा, घबराने लगा, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, हमारे इमोशंस घबराते हैं, हमारी कंपकपी सेंसरी वजह से होता है, हमारे सेंसरी डॉट्स जो रहते हैं उसकी वजह से होता है। ओके, तो अगर आपके इमोशंस में और आपके सेंसरी डॉट्स में हड़बड़ी मच गई तो आप समझ जाना है आपके स्पिरिट रिया में कुछ है ऐसा जो आपको ऐसे मालूम पड़ रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखो, परमेश्वर का स्वर्गदूत बात कर रहा है, तब भी ये लोग बोल रहे हैं हम कंपकपी भरे हुए थे। यीशु मसीह चल रहा था इम्मौस के लोगों के साथ, है ना, इम्मौस के लोगों के साथ चल रहा था, 2 जन के साथ, और तीसरा इंसान यीशु मसीह था। उन्होंने उसको पहचाना नहीं, लेकिन जब उनको रोटी तोड़ने के वक्त मालूम पड़ा अरे ये यीशु था, तो उन्होंने आपस में बात करके कहा तुझे नहीं लगता था कि हमारे अंदर कुछ ऐसा जलाहट सी हो रही है, कुछ ऐसे जलन जैसा हो, मतलब कुछ महसूस हो रहा था हमको कि ये कुछ अलग महसूस हो रहा था। यानी उनका महसूस होना ये जाहिर करता है कि आपके इर्द गिर्द में जो कुछ भी आपको भांपना है वो आपको भांपना है उस समय। ओके, अब उसका वो ये तो नहीं बता सके कि ये यीशु मसीह है, उसके कारण वो नहीं बता सके। तो आप भी जब भांप लेते हैं कुछ भी, तो आप बता नहीं सकते ये परमेश्वर की ओर से है या परमेश्वर की ओर से नहीं है। समझ में आया? तो आपको वो भांपने के आधार से कुछ आप गैस नहीं कर सकते हैं, आप गलती कर दोगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो, जब स्वर्गदूत सामने आ गया था तो मुंह के बल गिर जाता था यूहन्ना, है ना, और जब लोगों के ऊपर परमेश्वर का महिमा उतरता था बादल के रूप में, तो लोग मुंह के बल गिर जाते थे, उस बादल में वो खड़े नहीं रह सकते थे। अब खड़े रहने का और मुंह के बल गिर जाने का मतलब क्या बनता है? यानी क्या है कि परमेश्वर का आत्मा का जो प्रभाव है हमको खड़े भी रहने नहीं देता है, यानी हमारा खड़े रहने का जितना एबिलिटी है हमारे पास, उस एबिलिटी को वो पार कर जाता है। ओके, अब समझो आपके ऊपर कोई बोझ रख दिया, आप खड़े नहीं हो पा रहे, तो आपका शरीर का एबिलिटी उसको उठा नहीं पा रहा है उतना। ओके, लेकिन आपका इनविजिबल रियाम में, ओके, अदृश्य में भी अगर आपके ऊपर कोई बोझ डाला गया, अदृश्य में जो दिखाई नहीं देता है, ओके, सिर पर आपने बोझ लिया और इसके लिए आप खड़े नहीं रह रहे, तो हम लोग देख सकते हैं और पता कर सकते हैं ये बोझ इसका हल्का करना है। लेकिन समझो अदृश्य रियाम में आपके ऊपर कुछ बोझ रखा गया, कोई दुष्ट आत्मा बैठ गया, ओके, तो आपको कोई दुष्ट आत्मा ने अपना पाँव रख के दबा के रखा, आपको उसके पाँव के नीचे आपको दबा के रखा अदृश्य में से, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपको वो दबाव महसूस हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन आपको समझ में आ रहा है आपके सिर के ऊपर किसी ने तो पाँव रख के आपको दबा के रखा है ना, तो आपका अदृश्य में से आपको समझ में आता है, आप भाप सकते हो कुछ तो ऐसा मेरे ऊपर डाला गया है जो मुझे दबा रहा है। ओके, तो अदृश्य में से आपको सब कुछ जो भी माहौल है आपको उसका एबिलिटी दिया गया है, तो एबिलिटी के अनुसार आपके अंदर का, आपका लाइफ का सब कुछ चेंजेस होते रहता है। ओके, क्योंकि वो एबिलिटी को सहन नहीं कर पा रहे, तो क्या हो गया, वो गिर जाते थे लोग। परमेश्वर का आत्मा बादल में से जब आता था तो वो गिर जाते थे लोग, ओके, गिर जाते थे, मुंह के बल गिर जाते थे, खड़े नहीं रह पाते थे, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के अंदर वो रुक नहीं पाते थे। ओके, वो रुक नहीं पाते थे, और उसी के अंदर मूसा रुकता था तो उसका चेहरा इतना चमकदार बन जाता था कि लोग उस रोशनी को, उस चमक को आंखों के द्वारा बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, वो आंखों में बैठ नहीं पाता था, वो आंखों को परेशान हो जाते थे, वो नहीं सहन कर पाते थे। उनको मूसा को बोलना पड़ता था तो अपने चेहरे पर कुछ रख ले, वेल डाल ले, ओके, नकाब पहन ले, ताकि तेरा चेहरा छुप जाए और हम उसको ना देखें। समझ में आया? तो महिमा में रहना परमेश्वर के इतना चेंजेस कर देता है हमारा। ओके, इसके लिए परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर के आत्मा में हम लोग हैं, तो हमारा हर एक बात, हर एक चीज़ परमेश्वर सब कुछ के अंदर असर उतार कर लाता है।
हमारे स्वभाव में असर आता है, हमारे गुणों में असर आता है, हमारे चाल चलन में असर आता है, हमारे सोचों में असर आता है। ओके, असरदार हो जाता है वो। वैसे ही अगर दुष्ट आत्मा अगर हमारे रियाम्स में है, हमारे ऊपर दबाव हमको मालूम पड़ रहा है, कुछ भी हमको मालूम पड़ रहा है, तो हम उसको गैस नहीं कर सकते कि ये दुष्ट आत्मा है या ये स्वर्गदूत है, क्योंकि यहाँ तो स्वर्गदूत बात कर रहा था और फिर भी ये क्या बताया, कंपकपी और घबराहट होने लगी थी उसको, है ना। वहाँ पे यीशु मसीह उनके साथ चल रहा था, फिर भी वो पहचान नहीं पाए। और वो क्या हो गए उनके अंदर से, उन्होंने बोला हमको कैसे जलजलाहट सी हो रही थी ना, हाँ हमारे अंदर कैसे जलन जल रहा था, जैसे कुछ तो ऐसे उनको महसूस हो रहा था, आग जैसे महसूस हो रहा था। समझ में आया। तो हम गैस नहीं कर सकते इन सेंसेशंस के आधार से। ओके, ये ज्ञान से, सेंसेशन के ज्ञान के आधार से हम नतीजा नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ उसके असर से हमको मालूम पड़ता है कि क्या था। जब यीशु मसीह ने रोटी तोड़ा तब असर आया और पता चला उनको कि यीशु मसीह था वो। ओके, और वो भी परमेश्वर यीशु मसीह ने उनकी समझ को खोला, तभी उनको मालूम पड़ा। ओके, तो परमेश्वर से हम मांग सकते हैं, परमेश्वर हमारी समझ को खोल ताकि हम इसको समझ पाए ये क्या है। ओके, तो आप सेंसरी तौर में जितना भी अटैक्स रहता है दुष्ट आत्माओं की ओर से, उसके कारण विचलित नहीं होना है, क्योंकि आपके स्पिरिट रियाम में ये अटैक्स है। आपको परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर हमें समझ दे ताकि हम इसको फाइट कर सकें। ओके, और परमेश्वर के आत्मा का भी इतना जोर था कि इस्राएल लोग उसके नीचे रुक नहीं सकते थे और वो मुंह के बल गिर जाते थे। यानी इतना असरदार रहता था कि इस्राएल लोगों का जो कपड़ा है वो फटा नहीं, जूते हैं वो कम नहीं हुए और उनको कुछ भी बीमारी नहीं था। आराम से वो 40 साल दिन और रात वो यात्रा करते रहे। समझ में आया। तो मूसा का चेहरा बदल जाता था, रोशनी से भर जाता था। तो हमारे पास का सब कुछ जो है वो सेंसेस में, हमारे सेंसरी एरियाज ऑफ लाइफ में, हमारे सेंसरी डिपार्टमेंट जो है उसमें परमेश्वर का प्रभाव, उसके महिमा का प्रभाव हमने एकत्रित करके रखते हैं। जब हम बाइबल रीडिंग पढ़ते हैं, जब हम कन्फेशन करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम एकत्रित करके रखे होते हैं। ओके, और फिर अगर ऐसे एकत्रित रखे हुए अवस्थाओं के बाद में अगर कुछ ऐसा कुछ भी गड़बड़ी आ जाता है जो हम समझ नहीं पाते हैं, तो हमने परमेश्वर से पूछना है, समझ दे परमेश्वर कि हमने इस सेंसरी डिपार्टमेंट में जो हमको मालूम पड़ रहा है इसके बारे में हमने क्या करना है। ओके, तो हर एक बात, हर एक चीज़ परमेश्वर ने हमारे फ़ायदे के लिए बनाया है। हम उसका क्या कहते हैं, उसको हमने तुच्छ नहीं जानना है, हमने उसके बारे में दुख नहीं करना है कि ये क्या है, पता नहीं, डर लग रहा है, कंपकपी हो रही, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या है क्या है। हड़बड़ मत करो, शांत रहो और परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर ये एक एरिया ऑफ लाइफ है, इसके बारे में कुछ खोल के दे, बता मुझे ये क्या है, क्या करना है इसके बारे में। वो आपको बताएगा, वो आपको बताएगा, 100% बताएगा। ओके, और जब भी कोई लोग आपके घर में आते हैं, जब भी कोई लोग आपके घर से जाते हैं, ओके, आते जाते हैं, या कहीं पर आप आते जाते हैं, जहाँ पर आप क्रॉस कर देते हैं या आपको ऐसे धक्के लग जाते हैं, निकल जाते हैं, कैसे भी हो, कुछ भी हो, लेकिन जब आप लोग आमने सामने होते हैं तो याद रखना है आपकी तरफ से परमेश्वर का आत्मा रहता है। और अगर दूसरे अन्य विश्वास में से चल रहे, उनके पास उनके स्पिरिचुअल होते हैं, कोई ना कोई स्पिरिट्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि हमारे अंदर से परमेश्वर का आत्मा हमारी तरफ से रहेगा और उनकी तरफ से उनके स्पिरिट्स हमारी तरफ, उनकी तरफ से रहेगा। ओके, तो आप हमेशा ये ध्यान में रखते हुए ही रहना है। आप कभी भी ऐसा नहीं रहना है कि हम तो प्रभु में, हम तो, ऐसा नहीं है। ओके, उनकी तरफ से भी एक स्पिरिट का गैंग रहता है, हमारी तरफ से भी परमेश्वर का आत्मा हमारी तरफ से रहता है। ओके, हम हमेशा अपने कॉन्शियस में परमेश्वर को रखना है। ये भी नहीं भूलना है कि हम जहाँ पर है उनके भी कुछ स्पिरिट्स है वहाँ पर। ओके, जो आपके सेंसस में आपको मालूम पड़ सकते हैं। ओके, जो आपके सेंसरी डिपार्टमेंट्स आपको बता सकते हैं यहाँ कुछ है करके। ठीक है, तो हर बार याद रख के चलना है। देखो यहाँ कंपकपी भरी उसको, और कंपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ न कहा क्योंकि डरती थी,
है ना। तो ये सेंसरी डिपार्टमेंट इसी प्रकार से हमको चलाता है। ओके, सेंसरी डिपार्टमेंट है ये, इसी प्रकार से हमको चलाता है ये। हम कुछ कर नहीं सकते हैं उसको, और वो हमारे परमेश्वर ने हमारे बेनिफिट के लिए रखा है, हमारे हानि के लिए नहीं रखा है वो। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, मरियम मगदलिनी को यीशु का दिखाई देना। 9 वचन से आगे, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति न की। 2 चेलों को यीशु का दिखाई देना। 12 वचन से आगे, इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को, जब वे गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिए। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति न की। 11 को यीशु का दिखाई देना। 14 वचन से आगे, पीछे वह उन 11 को भी, जब वे भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। देखो, सिर्फ विश्वास नहीं करना है, विश्वास एक बात है और प्लस बपतिस्मा भी लेना है, और यहाँ पर लिखा है उसी का उद्धार होगा, यानी कंपलसरी है। अगर आप पापों की माफ़ी चाहते हैं, सिर्फ विश्वास करके फ़ायदा नहीं होगा, आपको उसके बाद और एक काम करना है, बपतिस्मा भी लेना है। ओके, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। यानी ये नहीं लिखा है कि जो बपतिस्मा नहीं लेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, ऐसा नहीं लिखा है। ओके, बपतिस्मा नहीं लिया तो दोषी नहीं ठहराए जाओगे, लेकिन विश्वास नहीं किया तो दोषी ठहराए जाओगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है विश्वास और बपतिस्मा लेने वालों में। ठीक है, विश्वास और बपतिस्मा लेने वालों में ये चिन्ह होगा या बपतिस्मा लेने वालों में ये चिन्ह होगा, ऐसा नहीं लिखा है। विश्वास करने वालों में, तो आप अन्य जाति में भी रहेंगे और आप यीशु में विश्वास करने लगे, तो आपके विश्वास के कारण आपको परमेश्वर चिन्ह दे सकता है। ओके, चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि इतनी महान बात तूने हमारे जीवन में लाई है। थैंक यू जीसस। यीशु का स्वर्गारोहण। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। और एक बार पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार यीशु का स्वर्गारोहण, एक बार और पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। तो अभी परमेश्वर की दाहिनी ओर वो मौजूद है। ओके, और वो दोबारा आने वाला है। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया यही बात का कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। रिबांदगा bahashara siralera bohuko siandura dad uhullaraha adetkin bekka bahashara siralera bohuko siandura dad uhum baraka laraha adimkin bekka bahashara siralera bohuko siandura dad uhum baraka laraha akatkin bekka laraha asaskin bekkatin laraha radetkin bekkatal ila labaka sehka bohushara siandura dad uhum baraka antaraha laraha azizkin bekkatan ila lahasiketin laraha brahasa। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपने जो महान काम हमारे जीवन में किया, वचन के द्वारा हमें सच्चाई का सामना कराया, झूठ की ताकत तोड़ दी, और जो परमेश्वर हमारे स्पिरिट के ऊपर जो भी होता है खुदा परमेश्वर, उसके बारे में भी तूने हमें ज्ञात करवाया। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हम पिता फिट एंड फिक्स हो आपके वचनों में, हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।
मैं आपको एक बुक पढ़ के बताऊंगी जो इसके बारे में बताता है कि लोग जब बोलते हैं ना कि मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है और मुझे पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा जब बोलते हैं तो मैंने आज आपको बताया ना किस प्रकार से स्पिरिट में जो हो रहा है उसका हम उसको महसूस कर सकते हैं। ओके, जैसे किसी ने पाँव रख के आपके स्पिरिट के ऊपर अगर दबाव डाल के रखा है, पाँव रख के बैठा है कोई, या अपने सीट के नीचे कुछ रख के दबा के बैठा है आपको, तो आपको महसूस होगा कोई मेरे सिर पे बैठा है। ओके, या कुछ भी जो है स्पिरिट रियाम में जो होता है आपको महसूस होता है। यही एक बुक है। ओके, यही एक बुक है जिसके अंदर आपको इतना आसान होगा समझने के लिए कि दुष्ट आत्मा कैसा स्पिरिट के अंदर से कैसे आपको महसूस होता है और वो क्या कर रहा होता है उस समय। ओके, और आप क्या बोल रहे होते हैं उस समय। मैं इसको ट्रांसलेट करके आप तक पहुंचाना चाहूँगी। आप अनुग्रह कीजिए, परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर अनुग्रह दे मुझे कि ये प्रकार से मैं आपके सामने लाऊं, कि दिखाऊं मैं आपको कैसे दुष्ट आत्मा के लोग जो दुष्ट आत्माओं को इस्तेमाल करते हैं अपने पैरों के अंदर, अपने बॉडी के अंदर। और फिर अगर समझो आपके ऊपरी फ्लोर पर कोई रहता है, आप अगर बिल्डिंग में रहते हैं, अगर आपके ऊपरी फ्लोर पर कोई रहता है तो आराम से वो चेयर रखेगा और आपके ऊपर बैठा रहेगा, पाँव उसका आपके सिर के ऊपर रहेगा। वो हमेशा ध्यान रखेगा कि आप किधर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। ओके, या कुछ लकड़ी विकड़ी लेके आपके सिर के ऊपर वो ठोकता बैठेगा। ओके, तो ये स्पिरिट से कनेक्टेड रहता है। ओके, अगर उसके अंदर इवल स्पिरिट है तो उसका आपके स्पिरिट को वो क्या कर रहा है मालूम पड़ेगा। समझ में आया? तो मैं वो बुक आपके लिए पढ़ के दिखाना चाहती हूँ। और ये सारे स्पिरिट के इफेक्ट्स जो है उसी के बारे में हमको बोला है लूका रचित 10 अध्याय के 19 वचन में कि तो सांपों और बिच्छुओं को रौंदेगा। ओके, तो जब आप वो बुक में से देखेंगे कैसे स्पिरिट्स काम करते हैं हमारे इनविजिबल रियाम में से और हमको कैसे महसूस होता है और हम वो महसूस क्या हुआ उसको हम बोलते हैं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपको वचन को मालूम रखना है। लूका रचित वचन 10 अध्याय का 19 वचन बता रहा है कि तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदोगे और कुछ भी ऐसा चीज़ जो हानिकारक है वो तुमको हानि नहीं कर पाएगा। तो आपको एक बात याद रखना है, महसूस होने से बात बनती नहीं है। ओके, महसूस आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। समझा? अगर समझो कोई इंसान आपको महसूस हो रहा है सिर के ऊपर पैर रख के खड़ा है, हाँ, आपका ऊपर का फ्लोर में है कोई और वो पाँव रख के बैठा है आप, या आप उसने अपने सीट के नीचे बैठने की जगह के नीचे आपको रखा है आत्मिक तौर से और उसके ऊपर बैठ गया है, दबा के बैठ गया है, महसूस हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बेअसर है, वो आपका कुछ हानि नहीं कर सकता है। अब उसने क्यों ऐसा किया होगा? वो कुछ तो मकसद से किया होगा, है ना? कुछ मकसद है उसको ऐसा करने का, वो मकसद उसका पूरा नहीं होगा। यही तो बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए। समझा? कोई भी आत्मा के अंदर का कुछ भी यूज करके आपको कुछ भी करने की कोशिश करता है वो आपको हानि नहीं करेगा। यही तो वचन बोल रहा है लूका रचित 10 अध्याय का 19 वचन। ओके, वो क्यों कर रहा है? तो क्यों कर रहा है? तो वो मकसद है, उसके पास कुछ तो करना है। उसको क्या करना है? वो आपका हानि करना चाहता है और यही तो वचन बता रहा है, वो हानि नहीं कर पाएगा आपका कुछ भी। हालेलुया। तो क्या फ़ायदा है महसूस को हमारे दिमाग के ऊपर रख के, है ना? हमारा महसूस करने से कोई मतलब नहीं बनता है। हमको महसूस से अगर हमारे पास कैपेसिटी है हम पार कर लेते, कैपेसिटी नहीं है तो परमेश्वर हमको बताता है कैसे पार करना है, आप पार कर लेते हैं। समझा? अब लाल समंदर को पार करना इजराइलियों की कैपेसिटी में नहीं था। ओके, कि वो तैर के जाए या चल के जाए या नाव बना के जाए, इतना समय भी नहीं था क्योंकि फिरौन उनका पीछा कर रहा था। तो वहाँ पे एक मिरेकल की ज़रूरत पड़ी और उसके लिए मिरेकल करने का अधिकार जो था लाठी में था। वो ओके, मिरेकल करने का अधिकार लाठी में मूसा को देकर रखा था। वो अधिकार को उसने यूज़ किया। मूसा को उसने बोला तू मुझे क्यों पुकार रहा है, तू अपनी लाठी को समंदर के ऊपर मार। ओके, तो उसने समुंदर के ऊपर मारा, वो समुंदर 2 भाग हो गया। अब ना वो इसराइल को मालूम था रास्ता, ना वो मूसा को मालूम था। उल्टा मूसा ने ही पूछा है भाई परमेश्वर क्या करूं मैं यहाँ पे।
समझ में आया? तो हम नहीं जानते हैं, मूसा नहीं जानता था इसराइल को कैसे छुड़ाना है। मूसा तो उल्टा परमेश्वर को बोल रहा था, क्या है परमेश्वर, तू परमेश्वर है या कौन है तू? इतना देर लगता है तुझे इसराइल को छुड़ाने को? एक झटके में तो छुड़ाना चाहिए। मेरे पास जो ईविल पावर थे, जब मैं फिरौन के पास था तो मैं तो एक झटके में सब कुछ सीधा करके रख देता था। तो क्या इतना देर लगा रहा है इसराइल को छुड़ाने के लिए? बार बार मुझे उसके पास भेज रहा है, बार बार वो फिरौन बोल रहा है मैं नहीं भेजूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इसराइल को। तो क्या कर क्या रहा है तू? यानी मूसा भी वो पावर को बोरिंग मानता था, परमेश्वर के पावर को बोरिंग मानता था। ओके, क्योंकि परमेश्वर का पावर फटाफट फटाफट ईवल पावर जैसा इंस्टेंट काम नहीं कर रहा था। ओके, इंस्टेंट, हाँ तूने ऐसा बोला, ये ले तेरे को अभी फटाक से। ओके, मैंने एक इंसान को देख के पैर झटका, उसने मेरे पैर पे बंधन डाल दिया। ओके, ये ईवल पावर है। ठीक है, तो वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, उनके पास पेशेंस है नहीं, बर्दाश्त है नहीं, वो तुरंत बदला लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास है ही नहीं, वो एबिलिटी ही नहीं है जो परमेश्वर की है, वो हमारे पास एबिलिटी है ना। तो परमेश्वर का एबिलिटी के अंदर से परमेश्वर जब इसराइल को छुड़ाने निकला तो उसने 9 चमत्कार दिखाए, और फिर 10वें चमत्कार के वक्त वो पूरी तरह से इसराइल बाहर निकले। ठीक है, तो फिर उसका चमत्कार दिखाने का टाइम मूसा को बोरिंग लग रहा था। मूसा बोल रहा था क्या है परमेश्वर, क्या बार बार तू मुझे उसके पास भेज रहा है, वो नहीं बोल रहा है तू मुझे भेज रहा है, वो नहीं बोल रहा है तू मुझे भेज रहा है। लेकिन जब 10वां समय आया, ओके, तब पता चला फिरौन के 9 ऐसे स्पिरिट्स थे जिसका घमंड था फिरौन के पास, और 10वां स्पिरिट भी था, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ। आमीन। उस समय तो वो पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, तो हम नहीं जानते हैं परमेश्वर क्यों लेट करता है, हमारा विरोधी को फाइट करने के लिए क्यों लेट करता है। वो लेट नहीं कर रहा होता है, वो उनके एक शक्ति का जवाब दे रहा होता है। ओके, एक शक्ति का जवाब। ओके, अभी तूने ये शक्ति लाया है, ठीक है, तेरे को उसका भी जवाब देता हूँ। अच्छा, तेरे पास दूसरी शक्ति है, ठीक है, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। और हम लोग को क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम है, परमेश्वर जल्दी क्यों फाइट नहीं कर रहा है, जल्दी क्यों आंसर नहीं दे रहा है, हम लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन वहाँ परमेश्वर उनके एक शक्ति के घमंड के साथ फाइट कर रहा होता है। ओके, तो आपको नहीं मालूम है उनके पास कौन सी घमंड है। ओके, आपको नहीं मालूम है उनके पास कौन सी ताकतें हैं। ओके, आप नहीं जानते हैं, इसकी वजह से आपको क्या लगता है जल्दी से काम हो जाना चाहिए, जल्दी से नौकरी लग जानी, जल्दी से परिवार ठीक होना है, जल्दी से लोग प्रभु में आने, जल्दी से सब कुछ होना है। आपको नहीं मालूम है उनके पास नहीं आने का कितने पावर्स हैं। ओके, आपके काम फेल करने का कितने पावर्स हैं आप नहीं जानते हैं। ओके, वो ये सोच के बैठे, ठीक है इस पावर से काम नहीं चला तो मैं दूसरा पावर यूज़ करूँगा, अच्छा इससे नहीं चला मैं तीसरा पावर यूज़ करूँगा, अच्छा इससे नहीं चला तो परमेश्वर बोलता है मैं धीरे 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 उसके सारे पावर्स का जवाब दूंगा, और लास्ट में अगर फिर भी वो लास्ट वाला पावर उठाने की भी सोचेगा तो उस पावर के साथ मैं इसको भी मिटा दूंगा। समझा? इसके लिए लोग मर जाते हैं, क्योंकि आपको सीक्रेट नहीं मालूम है क्यों वो लोग मर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पावर के घमंड को बनाए रखा। ओके, उनके पास हौसला है दिमाग के अंदर, ठीक है चल ये बार नहीं हुआ, अगला बार ये पावर यूज़ करूँगा मैं। ओके, ठीक है कर, फिर परमेश्वर धक्का दे देता है, उसको गिरा देता है। ठीक है, फिर वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं दूसरा पावर लेके आऊँगा, ठीक है लेके आ, फिर परमेश्वर गिरा देता है उनको। ओके, और लास्ट में फिर भी लास्ट पावर लेने की भी हिम्मत रखेगा तो परमेश्वर उसको मार डालता है, फिर ख़त्म कर देता है। ओके, इसके लिए परमेश्वर धीरजवंत है कि पहले पावर को गिराया तो तू समझ जाना है कि नहीं आना है हमारे पीछे, है ना, लेकिन नहीं, फिर दूसरा पावर यूज़ करेगा। ठीक है, दूसरा गिराया, अब तो समझ जा कि परमेश्वर भयानक है, नहीं, तीसरा पावर लेके आएगा, अब तीसरा हो गया, अब तो समझ जा, नहीं, फिर परमेश्वर बोलता है ठीक है तू जा, कितना दूर तक जाने का है, और गया, लास्ट में फिर उसको भी उड़ा देता है और बता देता है कि अब तुझे पता चलेगा कि मैं परमेश्वर हूँ, मेरे सामने और कोई पावर नहीं चलेगा। आमीन। और तू और एक्स्ट्रा पावर ढूंढने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी सैतान का लेके आने के लिए मैं तुझे जिंदा भी नहीं रखूँगा। जब तू मेरे पहले मार से नहीं सुधरा, जब दूसरे मार से नहीं सुधरा, जब तीसरे मार से नहीं सुधरा, तो 10वें मार खाने के बाद भी नहीं सुधरेगा, क्योंकि तो 11वां पावर ढूंढने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी सैतान का ढूंढने के लिए जाएगा। ओके, मैं तुझे क्यों जिंदा रखूं?
समझ में आया? तो वो इसके लिए मार डालता है कि मनुष्य लास्ट पावर यूज कर लिया अभी उसने, फिर वो सोचता है कि ठीक है चलो सब पावर्स मेरे फेल हो गए, अब मैं एडवांस सैटन का टेक्नोलॉजी देख के आऊंगा और फिर उससे मैं इनको सताऊंगा। तो वो एडवांस के लिए परमेश्वर उनको मार डालता है। समझ में आया? इसके लिए लोग मर जाते हैं सैटनिक किंगडम में से, क्योंकि वो अपने दिमाग में हार खाना नहीं चाहते, उनके घमंड वो टूटने देना नहीं चाहते हैं। ओके, तो इस तरह से परमेश्वर हमारी ओर से है। जब आपको कुछ भी महसूस होता है, आपको शांत रहना है। जब महसूस के बाहर हो जाता है, परमेश्वर उसका जवाब देता है। ओके, आपको काबिलियत बताएगा किस में काबिलियत है। अब मूसा के पास काबिलियत बताया, लाठी में काबिलियत है। लाठी को क्या करना है? समुद्र के ऊपर मारना है। ओके, समुद्र पे उसने मारा, समुद्र 2 भाग हो गया। तो मूसा के पास पहले ज्ञान नहीं था कि उस लाठी के अंदर कुछ पड़ा है, जो मैंने किया तो ऐसा कुछ होगा। उसके पास दिमाग नहीं था, उसके पास सिर्फ मुसीबतें थी। ओके, तो हमारे पास भी मुसीबतों का बहुत ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर के पास रास्ता है। हालेलुया। तो हम दुहाई लगाते हैं, परमेश्वर हमको बताता है मेरे पास क्यों दुहाई लगा रहा है, तेरे को मैंने अधिकार दिया है ना। अब्राहम के बारे में भी परमेश्वर ने वही बोला। अब्राहम ने देखा सारा बहुत चिढ़ गई है हगार के ऊपर, क्योंकि हगार बहुत सता रही है उसको, क्योंकि हगार के पास बच्चा है और सारा के पास नहीं है। ओके, तो वो सारा को तुच्छ जानने लगी। तो इसकी वजह से सारा ने बोला, देख मैं इससे परेशान हो गई हूँ, इसको निकाल दे। अब्राहम कैसे निकालेगा उसको, उसकी ही संतान है ना। हगार के पास भी अभी अब्राहम की संतान है, वो कैसे क्या उसको छोड़ सकता है, बराबर है। तो इसकी वजह से उसके अंदर क्या हो गया, अभी उसका इमोशंस ट्रबल में आ गया। अब ट्रबल में आ गया, अब क्या करेंगे? तो उसने क्या किया, फैसला लिया, चलो ठीक है इसको निकाल देने के लिए सारा बोल रही है तो निकाल देंगे। तो उसके माइंड में ये आया होगा, ये तो मैं इनजस्टिस कर रहा हूँ, है ना, ये तो मैं अन्याय कर रहा हूँ। मैंने ही हगार को अपने पास लिया, मैंने ही अपना बीज उसमें रखा और मैं ही अभी उसको यहाँ से निकाल रहा हूँ। ये कितना दुख है ना। हम खुद किसी को अपना करते हैं और फिर बाद में हमारे अंदर से हम खुद उसको निकाल रहे हैं, क्योंकि किसी को उसका परेशानी है, इसके लिए हम उसको निकाल रहे हैं। तो कितना दुख का बात है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या बोलता है, तू सारा का सुन, क्योंकि सारा ठीक कह रही है। समझ में आया? तो हमको दुख होने से, हमको इमोशन ब्रेक होने से मतलब नहीं बनता है। अगर आपको किसी ने वचन के द्वारा बता दिया कि आपको ये करना चाहिए, तो आपको भले ही वो दुख भरा लगे, लेकिन आपको करना ज़रूरी है। ओके, अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आपको छोड़ने के लिए बोल रहा है, परमेश्वर बता रहा है नहीं वो प्रभु में नहीं आएगा, आपको छोड़ देना ज़रूरी है, तो आपका जायज़ कारण कितना भी क्यों ना हो, आपको उसको नीचे रख देना पड़ता है, छोड़ देना पड़ता है। समझ में आया? इसी तरह से दुनिया में आपको परमेश्वर का रास्ता ही यस एंड आमीन लगना चाहिए। आपको अपना कितना इन्वेस्ट हो चुका है उसमें, और फिर आप उसमें से निकल के आ रहे हैं बाहर, तो वो जायज दिखता नहीं। आपकी समझ कितने भी लेक्चर झाड़े, उससे मतलब नहीं बनता है। आपको इतना ही देखना है कि जो परमेश्वर बोलता है, जितना परमेश्वर बोलता है वही होना चाहिए, जो परमेश्वर नहीं बोलता है वो नहीं होना चाहिए। ओके, जहाँ परमेश्वर खुद बोल रहा है कि ये सही नहीं है, तो आपको भी बोलना चाहिए यस आई एम सॉरी, ये सही नहीं है। ओके, आपको पीछे हटने का, घमंड टूटने का आपको ईमान रखना पड़ता है। ओके, आपका इन्वेस्ट किया गया बातें, आपका मन, आपके सारा समय, आपका हर एक उसके रेस्पेक्ट, उसकी इज्जत रखना, उसका आदर करना, ये सब मिल के एक वजनदार बन जाता है। आपको उसके अंदर से बाहर निकलना। ओके, लेकिन अगर परमेश्वर ने बोल दिया निकलो बाहर, आपको निकलना चाहिए। ओके, अगर नहीं आप निकलोगे उसके अंदर से, आप परेशानी में फंस जाओगे। तो फिरौन क्या कर सकता था? इस्राएल को परेशान कर सकता था, है ना, अगर वो समुद्र पे लाठी नहीं मारता तो, है ना, अगर सारा का नहीं सुनता अब्राहम, ओके, तो वो परमेश्वर की मर्जी है, उसको समझ में नहीं आता था, है ना। उसने सारा का सुना, तभी परमेश्वर ने बोला सारा ठीक कह रही है। यानी हमारे लिए परमेश्वर के दास और दासियां जब वचन देते हैं, तो चाहे वो हमको मालूम पड़ता है कि ये तो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करने बोल रहे,
तब भी हमको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो तरीका है, परमेश्वर हमको बताता है ये वो लोग नहीं बोल रहे, ये मैं खुद बोल रहा है, वो सही बोल रहे, जो बोल रहे उसको वैसा करो। हालेलुया। जब यीशु मसीह भी दाखरस बना रहा था तब उस मरियम ने बोला जो वो बोल रहा है वैसे करो। ओके, तो जहाँ से भी आता है आपको अगुवाई, परमेश्वर किसी के भी मुंह से देगा, किसी चीज़ में से, किसी तरीके से, किसी आर्टिकल में से, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ को यूज़ करेगा परमेश्वर आपको मोड़ कर लाने के लिए, और वो बार बार आपको बताएगा यहाँ से मुड़ना है। ओके, कभी न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते आपको उसमें ऐसा कुछ लेख मिल जाएगा, आर्टिकल मिल जाएगा, जहाँ आपको फिर याद आएगा परमेश्वर बोल रहे हैं मुझे यहाँ से मुड़ जाना चाहिए। कभी बुक्स पढ़ रहे आपको फिर याद आ जाएगा मुझे यहाँ से निकलने के लिए बोल रहे हैं। फिर परमेश्वर ऐसा अलग अलग यूज़ करता है कि हम अपने इरादे चेंज करें। ओके, लास्ट में हमने उसको कंफर्म मान के चेंज कर लेना है अपने आप को, ठीक है, नहीं तो वहाँ पे नुकसान रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से परमेश्वर हमको जो नहीं मालूम है हमको कैसे फाइट करना है, परमेश्वर रास्ता देता है। ओके, बहुत रास्ते हैं परमेश्वर के पास, अलग अलग रास्ते हैं। आप ज़रा भी जिम्मेदारी मत उठाओ कौन सी परिस्थिति को कैसे सामना करना है, ज़रा भी जिम्मेदारी मत उठाओ, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो और मांगो परमेश्वर, लॉर्ड इसके बारे में बता, मैंने इसके बारे में कैसा दी एंड लगाना है। ओके, अब इस्राएल को छुड़ाने के लिए 9 चमत्कार तक इंतज़ार लगाया था इस्राएलियों ने। ओके, दोबारा इस्राएली मूसा को गुस्सा कर रहे थे, वो बोल रहे थे तो क्यों आया हमको छुड़ाने के नाम से, क्योंकि इससे ज़्यादा अब फिरौन हमको परेशान कर, तो क्या है, तू जा यहाँ से, तू मत आ, हमको नहीं चाहिए तेरा कुछ भी, डिलीवरेंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो जा बाबा यहाँ से। ओके, ऐसा तक हो गया था इस्राएल को। ओके, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको कुछ नहीं बोला, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, वो अपना काम करता रहा, मूसा से वो काम करवाता रहा। अब लास्ट में क्या हो गया, इज़राइल कंप्लीटली छूट गए फिरौन के हाथ से, और ऐसे छूट गए कि फिरौन की कोई निशानी तक अभी ढूंढने जाओ तो आपको नहीं देगा, परमेश्वर देगा नहीं, फिरौन ख़त्म हो चुका है। आमीन। तो इस तरह से परमेश्वर ने उसका सब कुछ ख़त्म किया, उसका वंश से लेकर उसके जायदाद, उसका ऐश्वर्य, उसकी घमंड, उसकी ताकत, उसके सब कुछ ख़त्म किया, क्योंकि परमेश्वर उसको अगला समय देना नहीं चाहता था कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी सैतान से लेकर आए। समझा? तो आपका विरोध करने वाला इंसान भले ही आज जीवित दिखाई दे रहा है, ओके, तो आपको भले ही ऐसा लगेगा अभी तक परमेश्वर ने कुछ किया नहीं, अभी तक परमेश्वर ने मुझे इसमें से छुड़ाया नहीं, अभी तक ऐसे ही कर रहे, अभी तक वैसे ही कर रहे, डोंट वरी। आपको नहीं पता है कौन सी पावर को परमेश्वर ने उसके तमाचे लगा के दिखा दिए, आपको नहीं मालूम है। ओके, अब वो नया पावर यूज करके आएगा, अब नया लोग लेके आएगा, अब नए तरीके लेकर आएगा। डोंट वरी, परमेश्वर जब 10वां समय आएगा, ओके, वो सबके साथ उसका ख़त्म करके फिर बाद में परमेश्वर उसको एडवांस टेक्नोलॉजी लेने के लिए भी जगह नहीं देगा, ख़त्म कर देगा। आमीन। तो आप वो मत देखो कि कितना पीछे पीछे आ रहा है, डोंट वरी। ओके, मूसा एक जरिया था, लाठी एक जरिया था, समंदर पे मारना एक जरिया था, आपको भी परमेश्वर प्रार्थना एक जरिया है, वचन एक जरिया है, काउंसलिंग एक जरिया है, परमेश्वर के अंदर बने रहना एक जरिया है, आराधना करना एक जरिया है। किसमें से क्या निकलेगा वो परमेश्वर को पता है, हमको नहीं पता। ओके, इसके लिए आप ध्यान नहीं रखना है उन सारी बातों के ऊपर, सारी बातों को मिलकर परमेश्वर हमारे लिए सही ढंग से अलाइनमेंट में लेकर आएगा, हमको आगे बढ़ाता हुआ चलाएगा वो। आमीन। पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि अरे अभी तक फिरौन पीछे ही है, अरे अभी भी फिरौन पीछे। डोंट केयर, डोंट वरी। ओके, क्योंकि आपने नहीं देखा है उसके कितने पावर्स को परमेश्वर ने ज़मीन पे गिरा दिया है, आपको नहीं पता है। ओके, इसके लिए जस्ट आगे निकलते जाओ, जस्ट आगे निकलते जाओ। ओके, लास्ट में आपको गुड न्यूज़ आ जाएगी। ओके, ये परमेश्वर है हमारा, इसके लिए हमने कभी भी किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में दिमाग नहीं लगाना है, क्या करे कैसे करे, क्या करे कैसे करे, क्या करे कैसे करे। प्रार्थना करो, छोड़ दो,
आराधना करो, छोड़ दो, दिमाग से हटा दो। ओके, दिमाग पर जोर नहीं लेना है, क्योंकि हमको परमेश्वर के काम करना है। हमारे पास जो जोर लगाने के लिए ज़रूरी है वो करना है, जो हमको ज़रूरी नहीं है उसकी तरफ से दिमाग हटा देना है। आमीन। हाँ, हर पल, हर बार, हर दिन, हर एक बार आप ये बात ध्यान रख के चलना है, तब भी जाके हमारे अंदर का जो परमेश्वर का मकसद है हमारे ऊपर वो पूरा हो पाता है। ओके, जब हमारे अंदर का मकसद परमेश्वर पूरा करने का रास्ता पकड़ता है तो हम लॉस में नहीं रहते हैं। अगर हमने वो मकसद को छोड़ के बस यही बातों में पड़े रहेंगे, जैसे इस्राएली पड़े थे, गुलामी कर रहे, गुलामी कर रहे, गुलामी कर रहे, गुलामी कर रहे, और चिढ़ रहे, बहुत गुस्सा हो रहे, गुलामी कर रहे, गुस्सा हो रहे, गुलामी कर रहे, ओके, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आपको परमेश्वर ने काम दिया है, आप काम करते चलो, परमेश्वर जो चाहता है वो काम करते चलो, बाकी परमेश्वर के ऊपर छोड़ते जाओ, प्रार्थना करके छोड़ते जाओ, वचन पढ़ के छोड़ते जाओ, सब बातें जो भी परमेश्वर आपको करने के लिए दिया है सब करते करते आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। लास्ट में गुड न्यूज़ आएगा आपको। आमीन। वो परमेश्वर है हमारा, वो हमारा आबा पिता है। आमीन। कितना प्यारा परमेश्वर हमको मिला है, जो हमको धोखा नहीं देता है, हाँ, जिसको छोड़ के हमको कुछ नया ढूंढने के लिए जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। वो एक बहुत स्पेशल थिंग है उसके बारे में। ओके, लोगों को पावर टेस्ट करना पड़ता है, ये पावर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अरे नहीं कर रहा है, चल थोड़ा दूसरा। ओके, फिर दूसरा पावर, अरे ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अरे नहीं कर रहा है, चल तीसरा। ओके, हमको वैसा नहीं करना पड़ता है। हम कल भी यीशु के पीछे चल रहे थे, आज भी यीशु के पीछे चल रहे, आगे भी यीशु के ही पीछे जाएंगे। हमको कोई ज़रूरत नहीं और कुछ ट्राई करने की। मरे तो मरे, जिए तो जिए, वी डोंट केयर। हमारे पास परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा सब कुछ है। ओके, मरेंगे तो यीशु को मिलेंगे और जिएंगे तो यीशु के काम करेंगे। हालेलुया। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। ये हमारा सबसे बड़ा आनंद से भरा हुआ समय है पृथ्वी के ऊपर। ना मरने का डर, ना जीने का डर। ओके, जिएंगे प्रभु के काम करते करते, मरेंगे यीशु मसीह को देखने के लिए। हालेलुया। वचन है वो, यीशु मसीह को आमने सामने देखेंगे। इसके लिए क्या फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसको जो करना है करते बैठे। हमको जो करने के लिए बोला है वो करना ज़रूरी है। हमको परमेश्वर के काम करने के लिए बोला है, हमने वो करना ज़रूरी है। आमीन। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।